Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today, we will start chapter 6, measurement and motion. As you know that measurement plays important role in our life. We often talk about things like what is the length of this room, how much time will be taken by us to go to school, how much sugar is required for preparing halwa. Measurements are necessary to know the answers to such questions. For example, if you are preparing halwa, so measurement is required that how much sugar you are taking, how much oil or ghee, and how much quantity of wheat flour should be taken. So measurement is very important in a day-to-day life. Suppose you want to make a dress, so how much cloth will used for making a dress, so measurement is also required in this. Proper measurements are very important in our day-to-day life. We can't manage things just by guessing about different quantities. For example, suppose Mala's tailor wants to 1 meter of cloth for her dress. If the shopkeeper gives the cloth just by guess, it may turn out to be less or more than the tailor's requirement. In the first case, the dress wouldn't get made, and in the second case, there would be a wastage of cloth. Suppose that if you are taking clothes from the market, if quantity of cloth is less than your requirement, then your dress will not prepare. सपोज करो बेटा कि आप ड्रेस आपकी 1 मीटर में ड्रेस प्रिपेयर होनी है, बट आप जो क्लोथ लेकर के आए हो वो है आपका 1 मीटर से लेस, तो आपके कुछ यूज़फुल नहीं होगा वो. बट अगर आप 1 मीटर से ज़्यादा लेके आते हो क्लोथ, तो वो वेस्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट है वो बहुत ज़रूरी है. None of these is desirable, hence the shopkeeper correctly measures 1 meter of cloth and give it to Mala. We can think of many more suitable examples from our day-to-day life that tell us that we can't do without proper measurement of different physical quantities. For example, अगर आपको टेबल क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए भी आपको मेज़रमेंट चाहिए कि हाउ मच क्लॉथ्स यू रिक्वायर्ड. तो मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट मेज़रमेंट या तो आपके पास जो क्लॉथ है वो कम रहेगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा. कम रहेगा तो आप उसकी ड्रेस नहीं बना पाओगे, या फिर टेबल क्लॉथ बनाना है तो वो नहीं बन पाएगा. बट अगर ज़्यादा होगा तो देयर विल बी वेस्टेज ऑफ क्लॉथ. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़? Quantities which are measurable are called physical. This definition of physical quantity is important, so learn it carefully and listen it carefully beta. Physical quantities which are measurable, जिन quantities को आप measure कर सकते हो, that are known as physical quantity. For example, time है, length है, आप measure कर सकते हो, so these are physical quantities. क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, दैट मीन्स जिन क्वांटिटीज़ को आप मेज़र कर सकते हो, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, सो यू कैन गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज मेजरमेंट? सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन टेबल. In the absence of any instrument, we may decide to use the span of our hand for this purpose. As you can see in this picture, hand span. We carry out the measurement and may come up with the answer that the length of the given table is 6 hand span. What you have to do in this activity beta, you have to measure the length of this table, but you have no instrument for example इंची टेप या फिर कोई भी मेजरिंग स्केल नहीं है आपके पास. तो विदाउट स्केल आप किस तरह से मेज़र करोगे इस टेबल की लेंथ को? तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट वी आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस टेबल बाय आवर हैंड. दिस इज नोन एज हैंड स्पैन. ठीक है, तो हैंड स्पैन से जब हम मेज़र करेंगे लेंथ को, तो इस पर्सन ने जब अपने हैंड का यूज़ किया तो इसकी लेंथ कितनी आई? 6 हैंड स्पैन. बट
अब हैंड का साइज़ सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उसका मतलब जो हैंड स्पैन यूज़ की जा रही है, इस पर्सन ने मेज़र किया तो उसका 6 हैंड स्पैन आया, बट आप बच्चे हो तो उनका साइज़ स्मॉल होगा, तो आपकी जो हैंड स्पैन का साइज़ है स्मॉल होने की वजह से लेंथ ऑफ टेबल वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारी एक एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं होगी। अ क्लोज लुक एट दिस मेज़रमेंट reveals that we have used two things to express it. We have used a number and a fixed known quantity hand span. अभी आपने बताया जब आपने अपने हैंड स्पैन से इसको मेज़र किया तो आपने दो वैल्यूज़ ली, एक तो 6 प्लस हैंड स्पैन। 6 क्या है यहाँ पर नंबर है, एंड हैंड स्पैन इज़ अ नोन क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, हैंड स्पैन फिक्स क्वांटिटी है, बट आप जो नंबर बता रहे हो नंबर इज़ वेरी, नंबर कैन वेरी। वेरी कैसे करेगा नंबर? सपोज दैट अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसका साइज़ छोटा होगा, और अगर कोई बड़ा कर रहा है तो उसका साइज़, बच्चे का साइज़ स्मॉल होगा और बड़े का साइज़ ज़्यादा होगा। द फॉर्मर टेल अस as to how many times does our unit, that means hand span, get contained in the length to measure the length of a table. We thus realize that measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known fixed quantity. तो measurement में आपने क्या किया, एक unknown quantity को compare कर रहे हो किसके साथ में, with known fixed quantity. अब known quantity क्या होगी यहाँ पर, we need both the number as well as unit to express the measurement in a proper and complete way. अगर सपोज दैट आपको मेजरमेंट करनी है तो आपको दो वैल्यूज़ चाहिए, फर्स्ट आपको नंबर एंड सेकंड यूनिट। अब यहाँ पे जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो यूनिट क्या यूज़ कर रहे हो आप, अपनी हैंड स्पैन को यूज़ कर रहे हो। बट अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा देन यू विल राइट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दीज आर यूनिट फॉर टू मेज़र लेंथ। मैथ्स में भी करते हो बेटा, इनफैक्ट आपने जूनियर क्लासेस में 3rd 4th स्टैंडर्ड में भी किया था दैट टू मेज़र लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी यूज़ यूनिट मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर लेंथ स्मॉल है, साइज़ छोटा होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, बट अगर ज़्यादा डिस्टेंस की बात आती है देन वी विल यूज़ यूनिट किलोमीटर। सो मेजरमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी, या फिर कह सकते हैं फिक्स नंबर। दिस इज़ नोन एज अ मेजरमेंट। हमने कंपेयर किया अननोन क्वांटिटी को विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। अननोन नंबर कुछ भी हो सकता है, 6, 5, ठीक है, और यूनिट क्या लेके चल रहे हो आप, अपना हैंड स्पैन। नाउ एक्टिविटी इज गिवन टू यू, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम बेटा। Ask the students to measure the width of classroom, desk or study table using the hand span as a unit. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है बेटा, एक डेस्क की, जो आपके क्लासरूम में डेस्क होता है, तो डेस्क की लेंथ को मेज़र करना है विद योर हैंड स्पैन। बट अभी आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, सो यू विल डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। इंस्टेड ऑफ डेस्क यू विल टेक टेबल। आप सभी के घर में टेबल है, तो आपने इस एक्टिविटी को करना है। दिस इज़ वेरी फनी एक्टिविटी, यू विल एन्जॉय डेफिनेटली। इस एक्टिविटी में आप स्टूडेंट्स नहीं इन्वॉल्व होगे, आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर को इन्वॉल्व करना है। करोगे क्या बेटा इस एक्टिविटी में, आप आपके घर में जो भी टेबल है, स्टडी टेबल है या फिर दूसरी टेबल है, उसकी लेंथ को मेज़र करना है विद द हैंड स्पैन। ठीक है, आपके हैंड का साइज़ सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। आपकी मदर फादर के साइज़ आपसे बड़ा है, आपकी अगर सिस्टर छोटी है तो उसका साइज़ स्मॉल होगा। तो आप जब हैंड स्पैन का यूज़ करके लेंथ को मेज़र करोगे तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, दैट जो आपकी वैल्यू आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर ने मेज़र की तो वैल्यू कम आएगी, बट अगर आप मेज़र कर रहे हो तो हैंड स्पैन ज़्यादा होंगे। और अगर आपकी छोटा ब्रदर या सिस्टर मेज़र करता है लेंथ ऑफ टेबल को तो उसका साइज़
हैंड स्पैन का साइज़ छोटा होने की वजह से वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आपने 5 आपको कॉलम्स गिवन है, तो फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट के प्लेस पे आप अपने मदर फादर का नेम राइट करके, सेकंड में विड्थ ऑफ डेस्क स्टडी टेबल इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड्स हैंड स्पैन, मतलब आपने अपने हैंड स्पैन का यूज़ करना है और बताना है कि कितने हैंड स्पैन में आपकी टेबल की जो विड्थ है वो कवर हो रही है, टेबल की लेंथ भी होगी एंड विड्थ भी। तो ये बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, येस आई डू दिस एक्टिविटी एंड आई एन्जॉयड इट, येस इट वॉज फन, लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज 12 हैंड स्पैन्स। बच्चे ने क्या करा, बोर्ड की लेंथ को मेज़र किया और उसकी लेंथ कितनी आई, 12 हैंड स्पैन्स। वट डू वी ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को जब आप करोगे तो आप क्या सीखोगे इस एक्टिविटी से, दैट लेंथ ऑफ द सेम टेबल एज रिपोर्टेड बाय स्टूडेंट इज़ नॉट क्वाइट द सेम। लेंथ जो डिफरेंट बच्चे मेज़र करेंगे उसकी वैल्यू सेम नहीं आती, जो बच्चा जिसका हाथ का साइज़ स्मॉल है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, बट जिसका हाथ का साइज़ बड़ा है उसकी वैल्यू कम आएगी। तो ये रीज़न क्या है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, मतलब जो आपने लेंथ को मेज़र किया दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, स्टैंडर्ड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये डिफरेंट क्यों आया, द लेंथ ऑफ वंस हैंड स्पैन्स में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि एक बच्चे का जो हैंड स्पैन है उसका साइज़ दूसरे से क्या होगा, डिफ़र होगा, अलग होगा। डिफरेंट होने की वजह से आपकी वैल्यूज़ डिफ़र करेंगी, वैल्यूज़ जो है वो स्टैंडर्ड नहीं होंगी। इन द सेम वे द लेंथ ऑफ फ्लोर मेजर्ड बाय डिफरेंट चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ देयर फुट स्टेप्स विल नॉट क्वाइट द सेम। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, what these two children are doing, ये क्या कर रहे हैं, फ्लोर की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं बाय यूजिंग फुट स्टेप, अपने पैर के स्टेप से मेज़र कर रहे हैं कि फ्लोर की लेंथ कितनी है। तो ये भी डिफ़र करेगी, डिफ़र क्यों करती है, क्योंकि पैर का साइज़, फुट का साइज़, सबका फुट का साइज़ क्या होगा, सबका डिफ़र करेगा। डिफरेंट होने की वजह से जो वैल्यू आएगी दिस विल बी डिफरेंट। In such cases, which of the measurement results should then be accepted as the correct one? तो इनमें से कौन सी मेजरमेंट आपको करेक्ट लग रही है? There is no clear choice, मतलब जो भी आपने मेजरमेंट ली है उन कोई भी करेक्ट नहीं हो सकती। We can avoid this type of situations only if we have a unit that is same for measurements done by one and all. Such an agreed and internationally accepted unit of a given physical quantity is known as standard unit for the physical quantity. तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ बेटा, जो आप हैंड स्पैन का या फुट स्टेप का यूज़ कर रहे हो दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, वो सबकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करना है देन यू विल यूज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करोगे दैट मीन्स वी विल यूज़ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग दैट लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करना है तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर 3 बेसिक फिजिकल quantities length, time and mass are. Standard unit of length is meter. These units are very important for exam point of view. So learn these 3 standard unit. Length की unit क्या होती है बेटा, meter. Standard unit of time is second and standard unit of mass is kilogram. आपको पता है कि length की unit होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर होगी। इसी तरह से अगर आपसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम की पूछी जाए, टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा, सेकंड। वैसे टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर्स भी होंगे, 1 आवर, 2 आवर्स, मिनट्स भी होती है, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, सेकंड। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। Do you know we now have a standard set or system of units of different physical quantities.
This system, used and accepted all over the world, is known as International System of Unit. We usually use the short name SI unit for this system of unit. SI means Standard International Unit. Standard International means पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ तो आप जब लेंथ को मेज़र करोगे तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर. फॉर मेजरिंग टाइम वी विल यूज़ सेकेंड. पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाते हो, चाहे इंडिया से बाहर, अमेरिका, फॉरेन में भी, तो भी टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज़ की जाती है? सेकेंड. एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसआई? एसआई मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. इंटरनेशनल मीन्स पूरे, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हो तो भी स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी लेंथ, टाइम एंड मास की. लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड एंड मास की किलोग्राम. दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. सो take a recapitulations what we do today. Firstly, we did that measurement is very important in our day-to-day life. For example, if we want to prepare something, like we want to prepare halwa, then we need quantity of sugar, required quantity of sugar. That means measurement is necessary for this. Or if you want to prepare a dress beta, then also in this case measurement is also very important. So measurement plays a very important role in our day to day life. Without measurement there will be not a correct, or you can say, मतलब जब आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे पूरी किसी भी चीज़ की, तो बिना मेजरमेंट के हम अगर हम क्लॉथ से ड्रेस बनाना चाह रहे हैं तो वेस्टेज हो जाएगी क्लॉथ की. ठीक है. तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. और क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, दैट आर नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटीज़. फिर हमने क्या किया, दैट मेजरमेंट बिना इंस्ट्रूमेंट के की, तो हमने हैंड स्पैन यूज़ किया. बट एज यू नो दैट साइज ऑफ हैंड स्पैन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. हर एक पर्सन का हैंड स्पैन का साइज़ डिफरेंट होगा, तो जो आपकी मेजरमेंट आएंगी वो डिफरेंट होंगी. ठीक है. हैंड स्पैन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डिफरेंट आएंगी हमारी. तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट मेजरमेंट. जो अगर आप मेजरमेंट करते हो अपने हैंड स्पैन का या फुट स्टेप का यूज़ करके, तो ये जो मेजरमेंट आई वो करेक्ट नहीं है, मतलब आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमने क्या करा, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया. स्टैंडर्ड यूनिट हमने क्या बताई? मीटर, सेकेंड एंड किलोग्राम फॉर लेंथ, टाइम एंड मास. इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. और एसआई यूनिट, एसआई मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सेम यूनिट का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी. तो इससे मेजरमेंट करेक्ट आएंगी. तो इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करना चाहते हैं. हैंड स्पैन से या फुट स्टेप से करेक्ट मेजरमेंट नहीं आती. सो टुडे योर वर्क इज़ यू हैव टू लर्न extra question of this chapter, like unit of length, time and mass, and what is physical quantity, why measurement is necessary, because without measurement there will be no correct information of that object, or you can say. So today you have to read page number 83 to 86 and do extra question answer beta.